اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ مقصود سب کا ایک ہے۔ فرمایا کہ توقات کی طرف جانا چاہیے، ادھر آب و ہوا گرم ہے، اگرچہ انطاکیہ گرم مقام ہے لیکن وہاں زیادہ تر رومی ہیں، وہ ہماری بات نہیں سمجھتے، اگرچہ رومیوں میں بھی بعض لوگ ایسے ہیں جو ہماری زبان سمجھتے ہیں۔ ایک دن میں نے ایک جماعت سے بات کی، ان میں کافروں کا ایک گروہ بھی تھا۔ بات کے دوران میں وہ رونے لگے اور ذوق میں آ گئے اور حال ان پر طاری ہو گیا۔ سوال کیا کہ یہ کیا سمجھے اور انہوں نے کیا جانا؟ چیدہ مسلمانوں سے بھی 1000 میں سے ایک آدمی یہ باتیں سمجھتا ہے، یہ کافر کیا سمجھے کہ رونے لگا؟ فرمایا کہ یہ ضروری نہیں کہ وہ نفس مضمون کو سمجھے، اس بات کی جو اصل ہے وہ اسے سمجھے ہے۔ آخر سبھی خدا کی وحدت کے قائل ہیں اور مانتے ہیں کہ خدا خالق ہے اور رازق ہے اور ہر تصرف اور رجوع اسی کی طرف ہے، عذاب اور عفو اسی سے ہے۔ جب انہوں نے یہ بات سنی اور یہ بات خدا کی تعریف ہے اور اسی کا ذکر ہے تو ان سب کو اضطراب، شوق اور ذوق حاصل ہوا۔ اس بات سے ہی ان کے معشوق اور مطلوب کی خوشبو آتی ہے، اگرچہ راستے مختلف ہیں، بعض روم کے راستے سے جاتے ہیں، بعض چین کے راستہ سے، بعض دریا کے راستہ ہندوستان اور یمن سے۔ بس اگر تو راستوں پر نظر کرے تو اختلاف بہت بڑا اور بود حد سے زیادہ ہے، لیکن مقصود پر تو نظر کرے تو سب متفق ہیں اور سب ایک ہیں۔ اندر سے سب کعبہ پر متفق ہیں، باطنوں کو کعبہ سے بے حد ارتباط، محبت اور عشق ہے، وہاں کسی اختلاف کے لیے گنجائش نہیں۔ وہ تعلق نہ کفر سے ہے اور نہ ایمان سے، یعنی وہ تعلق ان مختلف راستوں سے مخلوق نہیں جن کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ جب وہاں پہنچ کے تو وہ مباحثہ، جنگ اور اختلاف جو انہوں نے راستہ میں کیا کہ اس نے اس سے کہا تو جھوٹا اور کافر ہے اور اس دوسرے نے اس کو ایسا ظاہر کیا، بے حقیقت نکلا۔ جب کعبہ میں پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ جنگ راستوں میں تھے، مقصود ان سب کا ایک تھا۔ مثلا اگر پیالے میں جان ہوتی تو وہ کاساگر کا غلام ہوتا اور اس سے عشق کرتا۔ اب یہ جو پیالہ بنایا ہے، بعض کہتے ہیں کہ اسے ایسے ہی دسترخوان پر رکھنا چاہیے اور بعض کہتے ہیں اسے اندر سے دھو لینا چاہیے اور بعض کہتے ہیں اسے دھونے کی حاجت نہیں۔ اختلاف ان چیزوں میں ہے، لیکن یہ کہ پیالے کا کوئی خالق اور بنانے والا ہے اور وہ خود بخود نہیں بن گیا، اس پر سب متفق ہے اور اس پر کسی کو اختلاف نہیں۔ آمدن برسر مطلب، اب سب انسان دل کے اندر سے ازرو باطن خدا کے محب ہیں اور اس کے طالب ہیں، اسی سے عاجزی کرتے ہیں، ہر بات میں اس پر بھروسہ کرتے ہیں اور کسی جزو کو اپنے آپ پر متصرف اور قادر نہیں سمجھتے۔ یہ نہ کفر ہے اور نہ ایمان، اور باطن میں اس کا کوئی نام نہیں، لیکن جب باطن کی طرف سے حقیقت کا پانی زبان کے پرنالہ سے روانہ ہوتا ہے اور جم جاتا ہے تو وہ نقش و عبارت بن جاتا ہے۔ یہاں اس کا نام کفر اور ایمان اور نیک اور بد ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے نباتات جب زمین سے اگتی ہے تو ابتدا میں اس کی اپنی کوئی خاص شکل نہیں ہوتی، اور جب وہ اس دنیا میں رونما ہوتی ہے تو ابتدائی کار میں لطیف و نازک اگتی ہے اور اس کا رنگ سفید ہوتا ہے۔ جوں جوں وہ اس دنیا میں قدم بڑھاتی ہے، غلیظ اور کثیف ہوتی جاتی ہے اور دوسرا رنگ اختیار کر لیتی ہے۔ لیکن جب مومن اور کافر اکٹھے بیٹھتے ہیں، جب تک وہ کچھ کہتے نہیں، سب یگانہ ہیں، خیال کا مواخذہ نہیں، درون عالم آزادی ہے۔ اس واسطے کے خیالات لطیف ہیں، ان پر حکم نہیں چلایا جا سکتا کہ ہم ظاہر سے حکم لگاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بیدوں کو پسند کرتا ہے۔ تیرے اندر ان خیالات کو خدا پیدا کرتا ہے، 100,000 جد و جہد اور لا حول سے تو انہیں اپنے اندر سے دور نہیں کر سکتا۔ بس وہ جو کہتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ کو آلہ کی ضرورت نہیں، تو نہیں دیکھتا کہ ان تصورات اور خیالات کو وہ بغیر کسی آلہ، کسی کلم اور کسی رنگ کے تیرے اندر پیدا کر دیتا ہے۔ وہ خیالات مرغان باد اور آہوان وحشی کی طرح ہیں کہ پیشتر اس کے کہ تو انہیں پکڑے اور قفس میں قید کرے، شریعت کی رو سے
उन्हें फरोख्त करना जायज नहीं, इस वास्ते कि तुझे ये मकदूर नहीं कि मुर्गबाद को फरोख्त करे, क्योंकि खरीदारी में तस्लीम शर्त है, और जब तुझे मकदूर ही नहीं तो तस्लीम क्या करेगा। बस ख्यालात जब तक बातिन में है बेनामो निशान है, इन पर हुक्म नहीं लगाया जा सकता, ना कुफ्र से ना इस्लाम से। कोई काजी ये पूछता है कि क्या तूने अपने अंदर ऐसा इकरार किया या ऐसी फरोख्त की या कसम खा कि तूने अपने अंदर ऐसा ख्याल तो नहीं किया, वो ऐसा नहीं कहता, इस वास्ते के बातिन में किसी का हुक्म नहीं। ख्यालात मुर्गानेबाद हैं। अब जब ख्याल इबारत में आ गया तो इस घड़ी इस वक्त इस पर कुफ्र और इस्लाम, नेक और बद का हुक्म लगाया जा सकता है। जैसा अजसाम के लिए एक आलिम है, इस तरह तसव्वुरात का आलिम है, तखय्युलात का आलिम है, तोहमात का आलिम है, और खुदावंद ताला सब आलिमों से दूर है, वो ना दाखिल है ना खारिज। अब इन तसव्वुरात में खुदावंद ताला के तसर्रुफात पर गौर कर कि वो बेचूनो चगुना और बगैर कल्म और बगैर आला के उनकी मुसव्वरी करता है। आखिर अगर ये ख्याल या तसव्वुर सीना को फाड़ दे और रेजा रेजा कर दे तो वो ख्याल तुझे इसमें नहीं मिलेगा, खून में नहीं मिलेगा, रग में नहीं मिलेगा, ऊपर नहीं मिलेगा, नीचे नहीं मिलेगा, किसी हिस्सा में नहीं मिलेगा, बगैर जहद के और बेचूनो चगुना, और इसी तरह वो बाहर भी नहीं मिलेगा। बस जब इसके तसर्रुफात इन तसव्वुरात में इतने लतीफ हैं कि बेनिशान हैं, तो वो खुद के इन सब को पैदा करने वाला है। देख तो सही कितना बेनिशान और कितना लतीफ है, क्योंकि ये ढांचे इंसानों की मानवीयत की निस्बत ज्यादा कसीफ हैं। ये मानी जो बेचूनो चगुना लतीफ हैं, अल्लाह ताला की लिताफत के मुकाबला में वो जिस्म और सूरतें हैं जो कसीफ हैं। तर्जुमाए शेर अगर पर्दों से इस पाक रूह को दिखा देता तो इंसानों को जान और अक्ल उसके मुकाबले में बदन ही शुमार होती। आशिक मुख्तार कुल नहीं होता, और खुदावंद ताला इस आलम तसव्वुरात में नहीं समाता, वो किसी आलम में नहीं समाता, क्योंकि अगर वो आलम तसव्वुरात में समा जाए तो जरूरी है कि मुसव्वर उसका अहाता कर ले। इस सूरत में वो खालिक तसव्वुरात नहीं रहता। बस मालूम हुआ कि वो तमाम आलिमों से दूर है। खुदा ने अपने रसूल का ख्वाब सच्चा कर दिखाया कि अगर खुदा चाहे तो मस्जिद हराम में दाखिल होंगे। सूरह फतह। सभी कहते हैं कि हम काबा में आएंगे, और बाज़ कहते हैं कि इंशाअल्लाह हम आएंगे। वो लोग जो इस्तिस्ना करते हैं आशिक हैं, इसलिए कि आशिक अपने आप को मुख्तार कुल नहीं देखता, वो माशूक को मुख्तार कार समझता है। बस वो कहता है कि अगर माशूक चाहे तो हम अंदर आए। अब अहले ज़ाहिर के नज़दीक मस्जिदुल हराम वो काबा है कि जहाँ खलकत जाती है, और आशिकों और ख़ास आदमियों के नज़दीक वो खुदा का विसाल है। बस वो कहते हैं कि अगर खुदा चाहे तो हम वहाँ पहुँचें और दीदार से मुशर्रफ हों। लेकिन ये जो माशूक कहता है इंशाअल्लाह, वो अजीब है। इसकी बात अजीब है। अजीब हस्ती को चाहिए कि बात भी अजीब ही सुने। खुदा के ऐसे बंदे भी हैं कि वो इस खुदा के माशूक हैं, महबूब हैं। खुदावंद ताला उनका तालिब है, और जो वजीफा आशिकों का है वो उनके लिए पड़ता है। बस ऐसे इसरार और अहवाल किस तरह खलकत से कहे जा सकते हैं। यहाँ कलम पहुंचा और उसका सर टूटा। जो शख्स ऊंट को मनारा पर नहीं देख रहा, वो बाल का एक तार ऊंट के मुंह में कैसे देखता है। आमदम बरसरे मतलब हम पहली बात की तरफ रुजू करते हैं। अब वो आशिक हैं जो इंशाअल्लाह कहते हैं, यानी काम माशूक का है। अगर माशूक चाहे तो हम काबा के अंदर आ जाएं। ये खुदा में गर्क हैं, वहां गैर नहीं समाता, और गैर की याद हराम है। गैर के लिए क्या जगह, जब तक कोई अपने आप को महव न करे वहां नहीं समाता। लै सफिदार गैर अल्लाह, ये जो फरमाते हैं कि रसूल रोया, ये आशिकों और सादिकों के ख्वाब हैं, और उसकी ताबीर इस आलम में जाहिर होती है। बल्कि तमाम आलमों के अहवाल एक ख्वाब है। ये ऐसा है कि ख्वाब में अपने आप को घोड़े पर सवार देखे तो मुराद को पहुंचता है। घोड़े को मुराद से क्या निस्बत। और अगर तू देखे कि तुझे खरे दिरहम दिए गए हैं
تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ تو کسی عالم سے درست اور نیک بات سنے گا۔ درہم کا بات سے کیا تعلق؟ اور اگر تو دیکھے کہ تجھے پھانسی دی گئی ہے تو رئیس قوم بنے۔ اب پھانسی کو ریاست اور سروری سے کیا علاقہ؟ اسی طرح ہم نے جو احوال عالم بیان کیے ہیں، ایک خواب ہے کہ یہ دنیا سوئے ہوئے کا خواب ہے۔ اس کی تعبیر اس عالم میں کچھ اور ہوتی ہے کیونکہ وہ اس عالم سے نہیں ہوتا۔ خدائی معبر اس کی تعبیر کرتا ہے اس لیے کہ اس پر سب کچھ منکشف ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ ایک باغبان باغ میں آئے اور درختوں پر نظر ڈالے تو شاخوں پر میوہ دیکھے بغیر حکم لگا دے کہ یہ خرما ہے، یہ انجیر ہے، یہ انار ہے، یہ امرود ہے اور یہ سیب ہے۔ اس کے لیے یہ اس لیے ممکن ہے کہ وہ یہ علم جانتا ہے۔ بس خدائی معبر کو قیامت کی ضرورت نہیں کہ ان خوابوں کی تعبیر وہاں پر دیکھے کہ کیا ہوا اور اس خواب کا کیا نتیجہ نکلا۔ اس نے پہلے ہی دیکھا ہوا ہے کہ نتیجہ کیا نکلے گا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے باغبان پہلے ہی سے جانتا ہے کہ بے شک یہ شاخ کیا پھل دے گی۔ مال، زن، لباس جیسی تمام اشیاء عالم کسی اور وجہ سے مطلوب ہیں، اس کی ذات کے لیے مطلوب نہیں ہے۔ تو نہیں دیکھتا کہ اگر تیرے پاس 100,000 درہم ہو اور تو بھوکا ہو اور تجھے روٹی نہ ملے کہ تو کھا سکے تو درہم غذا نہیں بن سکتے۔ زن بیٹا پیدا کرنے اور شہوت پوری کرنے کے لیے ہے، لباس سردی کو روکنے کے لیے ہے۔ اسی طرح تمام چیزوں کا سلسلہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جل جلالہ فی ذات ہی مطلوب ہے اور اسے محض اسی کی وجہ سے چاہتے ہیں، نہ کہ کسی دوسری چیز کی خاطر۔ جب وہ سب سے ورے ہے اور سب سے بہتر ہے اور سب سے شریف تر ہے تو اس کو اس سے کسی کم تر چیز کے لیے کیسے چاہیں؟ جو اس تک پہنچ جاتے ہیں تو مطلوب کلی تک پہنچ جاتے ہیں، وہاں سے آگے کوئی راستہ نہیں۔ آدمی کا یہ نفس محل شبہ و اشکال ہے، کسی وجہ سے بھی اس سے شبہ اور اشکال کو دور نہیں کیا جا سکتا سوائے اس کے کہ وہ عاشق ہو جائے۔ اس کے بعد اس میں شبہ اور اشکال نہیں رہے گا، کیونکہ کسی چیز کی محبت تجھے اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ جب ابلیس نے آدم کو سجدہ نہ کیا اور حکم کی مخالفت کی تو کہا، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے، میری ذات آگ سے ہے اور اس کی ذات مٹی سے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ادنا کو اعلیٰ سجدہ کرے؟ ابلیس کو اس جرم مقابلہ کرنے اور خدا سے جھگڑا کرنے پر ملوم گردانا گیا اور اسے دور کر دیا۔ ابلیس نے کہا، اے خدا، سب کچھ تو نے کیا اور یہ تیرا فتنہ تھا اور لعنت تو مجھ پر کرتا ہے اور مجھے دور کرتا ہے۔ اور جب آدم نے گناہ کیا تو خداوند تعالیٰ نے آدم کو بہشت سے باہر نکال کیا۔ خداوند تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، جب میں نے گرفت کی اور اس گناہ پر جو تو نے کیا تجھے ڈانٹا تو کیوں تو نے مجھ سے بحث نہ کی؟ آخر تیرے پاس دلیل تھی، تو نے یہ کیوں نہ کہا کہ سب کچھ تجھ ہی سے ہے؟ اور تو نے ہی کیا، جو تو چاہتا ہے دنیا میں وہی کچھ ہوتا ہے اور جو تو نہیں چاہتا وہ ہرگز نہیں ہوتا۔ تیرے پاس یہ واضح اور صحیح دلیل تھی، تو نے کیوں پیش نہ کی؟ جواب دیا، اے خدا، میں جانتا تھا مگر میں نے تیرے حضور میں ادب ترک نہ کیا اور عشق نے اجازت نہ دی کہ مواخذہ کروں۔ فرمایا کہ یہ شرح ایک گھاٹ ہے جس سے پانی پیتے ہیں، اس کی مثال ایسی ہے جیسے بادشاہ کی کچہری ہوتی ہے جس میں بادشاہ کے احکام امر و نہی کے متعلق، سیاست و عدل کے متعلق اور خاص و عام لوگوں کی داد رسی کے بارے میں جاری ہوتے ہیں۔ شاہ دیوان کے احکام حد سے زیادہ ہیں جو شمار میں نہیں آ سکتے اور بہت خوب اور فائدہ مند ہیں۔ دنیا کا قوام اس سے قائم ہے۔ فقیروں اور درویشوں کا کام بادشاہ کی دربارداری ہے۔ حاکم کے علم کا جاننا کہاں اور اس کے احکام کے علم کو پہچاننا اور حاکم کے علم کو سمجھنا اور بادشاہ کی مسابقت کہاں؟ بہت بڑا فرق ہے ان دو میں۔ یہ لوگ اور ان کے احوال ایسے ہی ہیں جیسے ایک مدرسہ ہو، اس میں فقی بیٹھے ہوں اور ہر فقی کو مدرس اس کی استعداد کے مطابق کپڑے دیتا ہو، ایک کو 10، ایک کو 20، ایک کو 30
हम हर एक से उसकी इस्तेदाद के मुताबिक बात करते हैं और हम कहते हैं लोगों से उनकी अक्ल के मुताबिक बात करो। ऊपर और नीचे की तमीज बेमानी है। हर शख्स इस इमारत को एक खास नीयत से तैयार करता है, इजहार करम के लिए या नामावरी के लिए या सवाब के लिए, और खुदावंद ताला का मकसद औलिया के मर्तबा को बुलंद करना और उनकी मिट्टी और मुकाबिर की ताजीम करना है। वो अपनी ताजीम के मोहताज नहीं है, वो अपने नफ्स में खुद मुअज़्ज़म है। चराग अगर चाहे कि उसे बुलंदी पर रखा जाए तो वो दूसरों की खातिर ये चाहता है, अपनी खातिर नहीं चाहता। इसके लिए ऊपर क्या और नीचे क्या, वो जहां भी है चराग रोशन है। वो चाहता है कि उसका नूर दूसरों को पहुंचे। ये आफताब जो आसमान पर है अगर नीचे हो तो भी वही आफताब है, मगर इस तरह दुनिया तारीक होगी। वो ऊपर अपने लिए नहीं दूसरों की खातिर है। उनका हासिल ऊपर नीचे और दुनिया की ताजीम से मुनज़्ज़ा है और फारिग है। तुझे इस आलम के जर्रा भर ज़ौक़ और लुत्फ का एक लम्हा अपना चेहरा दिखाता है तो उसी वक्त तू ऊपर और नीचे, ख्वाजगी और रियासत और अपने आप से और उससे जो तुझसे नजदीक तर है तू बेजार हो जाता है और तुझे उनकी याद तक नहीं आती। ये के कान और मेदन है और इस नूर और ज़ौक़ का असल है। ऊपर और नीचे के मुक़य्यद कैसे हो सकते हैं? उनका फ़ख्र खुदा से है और खुदा ऊपर और नीचे से मुस्तग़नी है। ये ऊपर और नीचे हमारे लिए है क्योंकि हम सर और पाँव रखते हैं। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे यूनुस अलैहिस्सलाम बिन मती पर बरतरी न दो कि उनकी मेराज बतने माही में हुई और मेरी मेराज आसमाने अर्श पर हुई। यानी अगर आप मुझे यूनुस अलैहिस्सलाम पर फजीलत दें तो इस वजह से ना दें कि उसे उरूज मछली के पेट में मिला और मुझे आसमान पर, क्योंकि खुदा ताला ना ऊपर है ना नीचे। उसकी तजल्ली ऊपर भी वही है और नीचे भी वही है और मछली के पेट में भी वही है। वो ऊपर और नीचे से मुनज़्ज़ा है, इसके लिए सब बराबर हैं। कई लोग हैं जो काम करते हैं, उनकी गर्ज कुछ और चीज और खुदा का मकसूद कुछ और चीज होती है। खुदावंद ताला ने जब चाहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन अज़मत पाए, पहले और अब तक बाकी रहे। तू देख के कुरान की कितनी तफसीरें बनाई हैं, 10-10 जिल्दें और 8-8 जिल्दें और 4-4 जिल्दें। इनकी गर्ज अपने इल्म फजल का इजहार है। ज़माख्शरी ने अपने इल्म फजल के इजहार के लिए कशाफ में बड़ी तकीक, नहव और लुगत और फसी इबारत इस्तेमाल की है। मतलब यह है कि मकसूद हासिल हो। यह है दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम। बस सारी दुनिया भी कार हक करती है और गर्ज हक से गाफिल है। इसका मकसद कुछ और है। खुदा चाहता है कि दुनिया कायम रहे। ये शहवत में मशगूल हैं, अपने मजे की खातिर किसी औरत से शहवत बाजी करते हैं, उससे बेटा पैदा हो जाता है। इसी तरह ये अपनी खुशी और लज्जत की खातिर काम करते हैं। ये सब खुद ही दुनिया की बका का बायस बन जाता है। बस दर हकीकत ये खुदा की बंदगी नहीं करते, ये उसकी नीयत ही नहीं करते। इसी तरह ये मस्जिदें बनाते हैं, उसके दरो दीवार और छत पर इतना खर्च करते हैं, लेकिन उसका एतबार किबला के दुरुस्त होने पर है और इनायत और बड़ाई किबला की वजह से है और उसकी ताज़ीम ज्यादा होती है। हर चंद के उनका मकसद वो न था। औलिया की ये बुजुर्गी आज़रुए सूरत नहीं, वल्लाह उनकी बुलंदी और बुजुर्गी है, लेकिन लासानी और बेमिसाल। आखिर ये दिरहम पैसा से बुलंद हैं। इसके क्या मानी है कि वो पैसे से बुलंद हैं, क्योंकि ज़ाहरी लिहाज से वो पैसे से बुलंद नहीं। दिरहम की बुलंदी सूरत की वजह से नहीं। अगर तू दिरहम को छत पर रख दे और सोने को नीचे फर्श पर, तो सोना हर हालत में कतई तौर पर ऊंचा होगा। सोना दिरहम से ऊंचा है। लाल और मोती सोने से ऊंचे हैं, खा उन्हें ऊपर रखो या नीचे। इसी तरह आटे की भूसी छलनी में ऊपर होती है और आटा नीचे होता है। आटा अगरचे नीचे है, फिर भी भूसी से बुलंद मर्तबा रखता है। बस तो कहेगा कि आटे की बुलंदी सूरत की रूह से नहीं। हाँ, आलिम मानी में चूंकि उसमें वो जौहर मौजूद है,
वो हर हाल में ऊंचा है। अक्ल का साया हर हाल में जरूरी है। एक शख्स दाखिल हुआ, फरमाया कि वो महबूब और मुनकसिर मिजाज है और ये खुसूसियत उसके जौहर की वजह से है। चुनाचे वो शाख जिस पर फल ज्यादा हो वो फल उसे झुका देता है और वो शाख जिस पर फल ना हो अपना सर ऊंचा रखती है, जैसे सफेदा का दरख्त। और जब फल हद से ज्यादा हो जाता है तो सुतून खड़े करके उसे सहारा देते हैं ताकि वो बिल्कुल ही न झुक जाए। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े मतवाज़ो थे, इसलिए कि तमाम दुनिया के फल अव्वल और आखिर उन पर जमा थे। लाजमी तौर पर वो सबसे ज्यादा मतवाज़ो थे। सलाम कहने में किसी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबकत ना की। कहा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कोई उन्हें सलाम न कर सका, इसलिए कि पैगंबर अलैहिस्सलाम उससे पेश दस्ती फरमाते और इंतहाई फरोतनी से सलाम कहते, और अगर बिलफर सलाम पहले ना कहते तो भी फरोतनी आप ही की तरफ से होती और आप ही कलाम में सबकत फरमाते, इसलिए कि वो सलाम आपसे सीखते और आप ही से सुनते। सब अव्वलीन और आखिरीन आप ही के परताव से सब कुछ पाते और वो आप ही का साया है। अगर किसी का साया उससे पहले घर के अंदर आ जाए तो वो साया उसके आगे होता है। दर हकीकत अगरचे साया सबकत ले जाता है, आखिरी सूरत में साया उससे साबिक हुआ तो ये उसकी फराह है। और ये इखलाक अब से नहीं, ये उस वक़्त आदम के ज़र्रात में अज्जा बना हुआ था, बाज रोशन और बाज नीम रोशन और बाज तारीक। इस घड़ी वो जाहिर हो रहे हैं, मगर ये ताबानी और रोशनी साबिका है। और आदिम में आपका जर्रा सबसे साफ तर, रोशन तर और मतवाज़ो तर था। बाज अव्वल देखते हैं और बाज आखिर। जो आखिर देखते हैं अर्जमंद और बुजुर्ग हैं, इसलिए उनकी नजर आकिबत और आखिरत पर है। जो अव्वल पर नजर करते हैं ये खास तर हैं। वो कहते हैं इसकी क्या जरूरत है कि हम आखिर पर नजर करें। जब उन्होंने अव्वल में गंदम बोई है तो आखिर में जौ नहीं उगेंगे, और जिन्होंने जौ बोए हैं उनके लिए गंदम नहीं उगेगी। बस उनकी नजर अव्वल पर है। और एक दूसरी कौम खास तर लोग हैं, वो ना अव्वल पर नजर करते हैं ना आखिर पर। उन्हें अव्वल और आखिर ये वो ही नहीं आता। ये लोग खुदा में गर्क हैं। और एक दूसरी कौम है कि ये दुनिया में गर्क है। ये लोग अव्वल और आखिर को नहीं देखते। इंतहाई गफलत की वजह से ये दोज़ख का ईंधन है। बस मालूम हुआ कि असल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हुए हैं कि अगर तू ना होता तो मैं आसमानों को पैदा ना करता। और हर चीज के मौजूद है आप ही के शर्फ, तवाज़ो, हुक्म और मुकामाते बुलंद से है। और सब आपकी बख्शिश है और आपका साया है, इसलिए कि आप ही से पैदा शुदा है। ये ऐसा है जैसे हाथ जो कुछ करता है अकल के साया से करता है, इसलिए कि अकल का साया उस पर है। हर चंद के अकल का साया नहीं है, लेकिन उसका साया बेसाया है। बिल्कुल इसी तरह जैसे मानी की हस्ती बेहस्ती है। अगर आदमी पर अकल का साया ना हो तो उसके तमाम अज़ा मुअत्तल हो जाएं। हाथ किसी कायदे से ना पकड़े, पांव सीधे रास्ता पर ना चल सके, आंख कोई चीज ना देखे, कान जो कुछ सुने टेढ़ा सुने। बस अकल के साया से ये अज़ा तमाम काम कायदा, खुशउस्लूबी और नतीजा खेज तरीक पर करते हैं। बस दरअसल ये सब काम अकल ही से होते हैं। अज़ा औजार हैं। ये ऐसा है जैसे एक आदमी बहुत बड़ा खलीफा वक्त हो, वो अकले कुल की तरह है। दूसरे मर्दों की अकलें उसके अज़ा हैं। जो कुछ वो करते हैं उसी के साया से होता है। और अगर उनसे कजी पैदा होती है तो उसकी वजह यह है कि अकल ने उन पर से अपना साया उठा लिया। ये ऐसे है जैसे किसी इंसान में दीवानगी का आगाज हो और उससे नापसंदीदा हरकतें सरजद होने लगे तो सबको मालूम हो जाता है कि इसकी अकल चकरा गई है और वो उस पर अपना साया नहीं डाल रही। वो अकल के साया और पनाह से दूर चला गया है। अकल फरिश्ता की जिन्स है, अगरचे फरिश्ता की सूरत होती है और परो बाल होते हैं और अकल के नहीं होते, लेकिन दर हकीकत वो एक ही चीज है और एक ही फेल करते हैं। सूरत को नहीं देखना चाहिए
मसलन अगर उसकी सूरत को पिघला दे तो सब अकल बन जाए, इसके परोबाल में से कोई चीज बाकी न रहे। बस हमने समझ लिया कि वो सब अकल थे। लेकिन मुजस्सम, इसे अकले मुजस्सम कहते हैं। जैसे मोम से परोबाल वाला परिंदा बनाए तो सब मोम ही होगा। क्या तू नहीं देखता कि तू उसे पिघला दे तो उस परिंदे के परोबाल और सर और पांव एकदम मोम बन जाते हैं और उनमें से कोई चीज बाहर निकालने के काबिल नहीं रहती। वो तमाम के तमाम मोम बन जाते हैं। बस हम समझ गए कि ये सब मोम ही है और जो परिंदा इस मोम से बनाया गया वो मोम ही है। उसके मुजस्सिम नक्श बन गए, वरना वो मोम ही है। इसी तरह बर्फ भी है, इसलिए जब तू उसे पिघलाए तो पानी बन जाती है। लेकिन जब अभी तक बर्फ नहीं बनी थी और पानी ही था, उसे हाथ में नहीं पकड़ा जा सकता था और मुट्ठी में नहीं आता था। लेकिन जब वो बर्फ बन गया तो हाथ में पकड़ा जा सका और दामन में डाला जा सका। बस फर्क इससे ज्यादा नहीं। लेकिन बर्फ वही पानी है और ये दोनों एक चीज है। आदमी का हाल ऐसा है कि फरिश्ते के परताओ और सोहबत से फरिश्ता बन जाए, इसलिए कि मुमकिन है कि वो फरिश्ता का हम रंग हो जाए। तर्जुमा शेर। ईसा अलैहिस्सलाम ने अकल के पर लिए तो वो उसे आसमान पर ले उड़ी। अगर गधे के आधा पर भी होता तो वो गधापन में न रहता। और क्या अजब कि वो आदमी बन जाता। खुदा हर चीज पर कादिर है। आखिर ये जो बच्चा पैदा होता है इब्तिदा में गधे से भी बदतर होता है। हाथ को गलाजत से भरकर मुंह की तरफ ले जाता है ताकि उसे चाट ले। माँ उसे पीटती है और मना करती है। गधे को एक किस्म की तमीज है। जब वो पेशाब करता है तो टांगों को चौड़ी कर लेता है ताकि पेशाब उन पर ना टपके। आखिर खुदावंद ताला इस तिफल को आदमी बना सकता है जो गधे से बदतर है, तो अगर वो गधे को आदमी बना देता है तो इसमें कौन सी ताज्जुब की बात हुई। खुदा के नजदीक कोई बात अजीब नहीं। कयामत में आदमी के तमाम अज़ा, हाथ पांव वगैरह एक एक करके जुदा जुदा बोलेंगे। फलसफी इसकी ये तावील करते हैं कि हाथ कैसे बात करेगा। शायद हाथ पांव पर कोई इलामत और निशानी पैदा हो जाएगी जो बात की बजाय हो। जैसे फोड़ा या दुम्बल हाथ पर निकल आए तो कह सकते हैं कि हाथ बात करता है। वो खबर देता है कि मैंने गर्मी खाई है, कि मेरा हाथ ऐसा हो गया है। या हाथ जख्मी हो जाए या स्याह हो जाए तो कह दे कि हाथ बात करता है। खबर देता है कि मुझे छुरी लगी है या मैंने अपने आप को काली देग से मला है। हाथ और बाकी अज़ा की गुफ्तगू का ये तरीका होगा। सुन्नी कहते हैं ये महसूस दस्तोपा जरूर बात करेंगे, बिल्कुल इसी तरह जैसे जुबान बात करती है। कयामत के दिन आदमी इनकार करेगा कि मैंने चोरी नहीं की। हाथ फसीहो बलीग जुबान में कहेगा तूने चोरी की, माल मैंने लिया। वो शख्स हाथ और पांव की तरफ मतवज्जो होकर कहेगा तुम तो बोल नहीं सकते थे, अब कैसे बोल रहे हो। वो जवाब देंगे हमें उसी अल्लाह ने बोलना सिखाया जिसने हर शय को नतक बख्शा। हमें उसने बात कराई है जो हर चीज से बात कराता है और दरो दीवार, पत्थर और मिट्टी के ढेले तक से बात कराता है। वो खालिक जो सबको नतक बख्शता है, मुझे भी उसी ने कुव्वत गोयाई दी है। जुबान तुझे नातक बनाती है। तेरी जुबान गोश्त का एक टुकड़ा है, हाथ गोश्त का एक टुकड़ा है। सुखन पारा एक गोश्त है। जुबान कितनी माकूल है। उस वक्त तूने जो देखा तुझे महाल मालूम हुआ, मगर खुदावंद ताला के नजदीक तो जुबान एक बहाना है। जब उसे फरमाया बात कह, उसने बात कह दी। और जिससे वो फरमाता है और जिसे वो हुक्म देता है वो बात करता है। सुखन आदमी के ज़र्फ के मुताबिक पैदा होता है। हमारा सुखन पानी की तरह है जिसे दरोगा जारी करता है। पानी को क्या मालूम कि दरोगा ने उसे किस जंगल की तरफ रवाना किया है। बाग में उस जगह के लिए जहाँ ककड़ियाँ हैं या जहाँ साग है या जहाँ प्याज है। मैं जानता हूँ कि अगर पानी बहुत आए तो वहाँ प्यासी जमीन बहुत है, और अगर पानी थोड़ा आए तो समझता हूँ कि जमीन थोड़ी है। बागीचा है या छोटी चार दीवारी, वाइजों की जुबान से सामीन की समझ के मुताबिक ही हिकमत की तलकीन की जाती है। मैं जूते सीता हूँ, चमड़ा बहुत है, पाँव के मुताबिक चमड़ा काटता और सीता हूँ। तर्जुमा शेर। मेरी शख्सियत का साया और उसका अंदाजा कद के मुताबिक लगाया जाता है कि वो किस कदर है। जमीन में एक छोटा सा हैवान है
जो जमीन के नीचे जिंदगी बसर करता है और जुल्मत में रहता है, उसकी आंख और गोश्त नहीं है, इसलिए कि जहां वो रहता है वो जगह आंख और गोश्त की मोहताज नहीं है। जब उसे आंख की जरूरत ही नहीं तो उसे आंख क्यों दे? ये नहीं कि खुदा के पास आंखें और गोश्त थोड़े हैं या बुखल है, वो जरूरत पर चीज देता है। जो चीज बगैर जरूरत के दी जाए वो बोझ बन जाती है। इस तरह खुदावंद ताला की हिकमत और लुत्फ व करम के बोझ बन जाते हैं। किसी पर बोझ क्यों डालें? मिसाल के तौर पर अगर तू बढ़ई के औजार, तेशा, आरा, रेती वगैरह दर्जी को दे दे तो वो उसके लिए बोझ बन जाएंगे, क्योंकि वो उनसे काम नहीं कर सकता। बस जरूरत हो तो चीज देते हैं। ऐसे ही वो कीड़े जो जमीन के नीचे उस जुल्मत में जिंदगी बसर करते हैं, ऐसी मखलूक हैं जो इस दुनिया की तारीकी पर काने और राजी हैं और इस आलम के मोहताज और दीदार के मुश्ताक नहीं हैं। चश्मे बसीरत और गोशो होश उनके किसी काम के नहीं। उस दुनिया का काम उनकी चश्मे हिस्सी ही से निकल आता है। जब वो दूसरी तरफ का अज़म ही नहीं रखते तो वो बसीरत उन्हें क्यों दी जाए जो उनके किसी काम ही की नहीं। तर्जुमा शेर, ताकि तू ये गुमान न करे कि रास्ता तय करने वाले नहीं है, पूरी पूरी सिफात रखने वाले बेनिशान लोग भी नहीं है। तर्जुमा शेर, इस सबब से कि तू राजों को समझने वाला नहीं है, तू ख्याल करता है कि दूसरे भी मौजूद नहीं है। अब दुनिया गफलत से कायम है, अगर गफलत ना हो तो ये दुनिया ना रहे। खुदा का शौक, आखिरत की याद, शुक्र और वजद उस जहान के ममार हैं। अगर सब मुकम्मल तौर पर उधर मतवज्जो हो जाएं तो हम उस आलम में चले जाएं और यहाँ न रहें। मगर खुदावंद ताला चाहता है कि हम यहाँ रहें ताकि दोनों जहान हो। बस दो मुतजाद चीजें खड़ी हैं, एक गफलत और एक बेदारी, ताकि दोनों घर आबाद रहें। अस्सलामुअलैकुम। पूरी किताब देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सूफी समा की प्लेलिस्ट में जाएं। यहाँ आपको मुख्तलिफ बुजुर्गों की किताबें मिलेंगी और जो किताब पूरी ना हुई उस पर काम तेजी से हो रहा है और रेगुलर बेसिस पर अपलोड होती रहती हैं। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली किताबें आपको मिलती रहें। जज़ाकुल्लाहु खैर।